The World Environment Day, celebrated every year on 5th of June, is a great opportunity to reflect on what we can do as individuals, civil society, corporates, and governments to protect our ecosystem and natural assets. This year's observance of World Environment Day is on the theme of ecosystem restoration and focus on resetting our relation with nature. World Environment Day 2021 marks the beginning of the UN Decade on Ecosystem Restoration, a global mission to revive and restore ecosystems. Modern lifestyle and unsustainable development patterns have placed increasing pressure on our Mother Earth. Thus, environmental occasions like World Environment Day can help to reach out to wider public and younger generations to encourage and educate them about the importance of protecting the environment and natural resources. Bengal Energy Limited considers environmental studies, environment management planning as a way of learning of how one can develop sustainable strategies to protect the environment, help individuals to develop an understanding of living and physical environment, and resolve challenging environmental issues affecting nature. The main objective of their environmental work is to prevent pollution and continually reduce the environmental impact from their industrial activities in order to protect the environment for future generations. To meet these objectives, Bengal Energy Limited will maintain and further develop a culture in which reducing the environmental impact of the product life cycle will be an integral part of the daily work practice. Employees of Bengal Energy Limited also celebrated the World Environment Day by planting of trees, followed by signing the Green Pledge tree. The environmental engineer and plant head always takes initiative in creating awareness about environmental problems among their workforce. They also impart basic knowledge about the environment and its allied problems, motivate the entire workforce to participate in environmental protection, tree plantation, and environmental improvement activities. Bengal Energy Limited has a green belt spread across 2 lakh square meters. It has approx 75,000 trees planted on it. There are around 600 fruit trees such as mango, lychee, guava,
chiku, banana, jamrul. There are trees like neem tree, kadam tree, bokul tree, palm tree, and shrubs like bougainvillea, calendula, elastonia, etc. Bengal Energy Limited aims to set the highest standards for environmental protection. They urge their business partners to share this ambition.
मैं रामदयाल तिवारी, वाइस प्रेसिडेंट, बंगाल एनर्जी लिमिटेड। आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है। इस दिन हम लोग पर्यावरण की रक्षा के लिए अपने प्लांट में हो, अपने प्लांट के अगल बगल हो, उसके जो भी रख रखाव के लिए करना पड़ता है हम लोग करते हैं। विगत 10-12 सालों से हम लोग अपने प्लांट में इस 5 तारीख को एक वृक्षारोपण का प्रोग्राम करते हैं। लगभग 5 सालों में, ये विगत 12 सालों में हम लोगों ने अपने प्लांट में लगभग 1 से 1.5 लाख हम लोगों ने प्लांट लगाए हैं। कुछ प्लांट उसमें बचे हैं, कुछ प्लांट उसमें सरवाइव नहीं कर पाए हैं, लेकिन हम लोग की अपनी ये कार्यशैली और हम लोगों का ये जो निरंतर अभ्यास जो है प्लांट लगाने का पर्यावरण के दिन और उसके रख रखाव के लिए हम लोग कटिबद्ध रहते हैं। और आज जिस महामारी से हम लोग जूझ रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा योगदान ऑक्सीजन का है। और यदि हम पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं और पर्यावरण ठीक रहता है तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है। जिस ऑक्सीजन के लिए आज पूरे हिंदुस्तान में मारामारी चल रही है, उससे निजात पाने के लिए पर्यावरण को सुरक्षित रखना और जितना भी मतलब हम लोग वृक्षारोपण कर सकें, जहाँ भी हो, जहाँ खाली स्थान मिले, जो भी आपको प्लांट के अंदर कहीं भी कोई जगह मिले, मैं सबसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप लोग कुछ न कुछ प्लांट का वृक्षारोपण करते रहें। और ये आने वाले दिनों में आपकी पीढ़ी जो है उसको भी एक प्रेरणा मिलेगी कि हमारे जो पूर्वज थे वो कुछ हमारे लिए करके गए हैं। जो आज हम पेड़ देख रहे हैं, जो भी फल फूल खा रहे हैं, वो आज हमने कुछ लगाए हैं, कुछ हमारे पूर्वजों ने लगाया है। आज जिसका ये परिणाम है उसका फल हम लोग को मिल रहा है। और इसी संदर्भ में मैं अपने सभी साथियों से ये गुजारिश करता हूँ कि आप लोग जहाँ रहते हैं अपने घर के अगल बगल इस पर्यावरण को थोड़ा सा और सुरक्षित करें। देखिए, आप लोग ग्लोबल वार्मिंग का नाम सुने हैं। विश्व में इसी पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए ये कहा गया है। अदरवाइज़ आप कार्बन डाइऑक्साइड यदि बढ़ जाता है तो ग्लोबल वार्मिंग जो है आपकी ये होगी, और उससे क्या होगा, जितने हिम शिखर हैं वो सारे गल जाएंगे, क्योंकि गर्मी पड़ेगी, हिम शिखर गलेंगे, पानी की मात्रा बढ़ेगी और अगल बगल जो छोटे छोटे द्वीप हैं या शहर के नज़दीक जहाँ समुद्र तट है वहाँ पानी का उफान थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। तो इसलिए इस ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए पर्यावरण पर ध्यान दें, पर्यावरण को सुरक्षित रखें। और जितना आप लोग इस पर ध्यान देंगे, जितना सुरक्षित रखेंगे, ये आपके आने वाले जनरेशन के लिए एक वरदान साबित होगा। और मैं सभी से गुजारिश करता हूँ, सबको अपनी सद्भावना देते हुए और सबको प्यार देते हुए मैं ये कहूँगा कि आप लोग इस पर्यावरण के दिन आप लोग जहाँ भी हों कुछ न कुछ आप लोग पेड़ लगाने की चेष्टा करें। धन्यवाद। एनवायरनमेंट डे टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग, इट्स गुड। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ऐसे मौके पे कम से कम हम लोग बात करते हैं रिगार्डिंग दिस, विच इज़ धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ाता है। एंड दैट्स व्हाट वी वांट। टुडेज नीड इज़ दैट वी डेवलप आवर एनवायरनमेंट फॉर द पर्पज ऑफ डेवलपिंग इम्यूनिटी। So that's the great cause. Thank you for giving an opportunity. Thank you. एक्चुअली हर साल हम लोग 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। एक्चुअली हर साल का तरह ये साल भी 5 जून को 5 जून को हम लोग मना रहे हैं। और हम लोग जैसा प्रोग्राम रखा गया है उसी हिसाब से पौधे वगैरह लगाया जाएगा। और ये हर
टाइम में मेंटेन करना चाहिए प्लांटेशन को, क्योंकि हमारा स्टील प्रोडक्शन में जितना कार्बन डाइऑक्साइड जनरेशन होता है उसको घटाने के लिए ये एक बड़ा प्रयास है। थैंक यू। मैं नित्यानंद मिश्रा, बंगाल एनर्जी लिमिटेड। प्यारे सभी सहकर्मियों, आज के दिन में हम लोगों ने जो त्रासदी देखी है ऑक्सीजन को लेकर के, उसका ये बहुत ही सहज और सुलभ उपाय है, जिसको कहीं न कहीं हमारे जनरेशन में, हमारे विकास के दौर में इसको एक अलग थलग कर दिया गया है। कई राज्यों में हम देख रहे हैं बराबर जो त्रासदियाँ आती है उनके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि वृक्षों का कटान। वृक्ष हमारे लिए जीवनदायी है। जिस तरह से हम कहते हैं कि हम भी कुदरत के ही उत्पाद हैं और कुदरत का जितना हम ख्याल रखेंगे कुदरत हमारा ख्याल रखेगा। ये बिल्कुल हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये पेड़ पौधे ये हमको जीवन देते हैं। हमारे जीवन को चलाने के लिए जो भी चीज़ चाहिए, जितने मिनरल, विटामिन, जो भी जितने भी केमिकल्स चाहिए, वो सब आज के दिन में प्रकृति में ही उपलब्ध है और बहुत ही सहज और सुलभ है। आज का दिन, ये जो विश्व वातावरण दिवस है, इसमें हम लोग का मुख्य लक्ष्य और हम लोग अपने साथ अपने सहयोगियों को ये मोटिवेट करते हैं कि एक वृक्ष लगाएं। लगाने का मकसद ये होता है कि जब हम कोई चीज़ खुद से करते हैं तो उसके प्रति हमारा स्नेह बढ़ जाता है। आज यदि हम एक वृक्ष लगाएंगे तो निश्चित रूप से यदि कहीं इस विनाश की प्रक्रिया हो रही है, वृक्षों का कटान हो रहा है, तो हमको उससे एक माया हो जाएगा, एक मोह हो जाएगा और हम निश्चित रूप से उसको सुरक्षा देने का एक प्रयास करेंगे। तो इसी को मद्देनज़र लेते हुए आज विश्व भर में ये दिन मनाया जाता है और ये सबों से हमारा अपील है कि इस चीज़ को अपने आने वाले जो जनरेशन हैं, अपने लिए जो एक बहुत प्रमुख चीज़ है ऑक्सीजन, इससे बड़ा ऑक्सीजन का सोर्स और कोई नहीं हो सकता है। इसीलिए कम से कम इस चीज़ को ध्यान देते हुए हम लोग को अपने आसपास होने वाले पेड़ की सुरक्षा करना चाहिए। धन्यवाद। আমি রাজদীপ ভট্টাচার্য, বেঙ্গল এনার্জিতে আছে। ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে আজকে, তো অ্যাকচুয়ালি ইন্ডাস্ট্রিতে আমাদের করছি আমরা এখানে। তো বেসিক্যালি ইন্ডাস্ট্রিতে আমাদের যে একটা কনসেপ্ট, মানে উই শুড স্টার্ট দ্য ইন্ডাস্ট্রি ইন এ গার্ডেন, মানে বাগানের ভিতরে ইন্ডাস্ট্রি করা উচিত। তা সেই কনসেপ্ট নিয়ে যদি আমরা চলি তাহলে ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডের খুব এর ইম্পর্টেন্স আছে। আর ওভারঅল যত বেশি আমরা গ্রিনারি রাখবো তত অক্সিজেন পাবো, এনভায়রনমেন্ট হেলদি হবে, গ্রিন হাউস এফেক্ট কম হবে, আলটিমেটলি ইট ইজ হেল্পফুল। আরে এফেক্ট এখন পাবো না, মেবি আরও 5-6 বছর পর হবে। আমাদের নেক্সট জেনারেশন যারা আসবে তারা এর লাভ পাবে। সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি যারা যারা গাছ লাগালো তারা যেন গাছটা পরিচর্যা করে আর লাগিয়ে ভুলে না যায়। এটাই আমাদের দায়িত্ব। নিজেদের মতো করে আমাকে অ্যাডাপ্ট করতে হবে, গাছটাকে পরিচর্যা করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত নিজে সাস্টেন করে বড় হয়ে না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত দেখভাল করতে হবে। এই আর কি। थैंक यू। नमस्कार। पर्यावरण के बारे में लोग अच्छा बात बोलते हैं लेकिन उनको फॉलो नहीं करता। आज जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं ये दीदी ने हम लोग लगाने दिया है और हम वो ऑक्सीजन ले रहे हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि आने वाले जनरेशन को हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने दें ताकि वो भी स्वच्छ वातावरण में रह सके और जो अभी हो रहा है उसमें हम लोग हमारा आने वाला जनरेशन बन सके। धन्यवाद। Thank you very much for this type of organization. और myself चंदन दे 25 years सेम टाइप का कर रहा हूँ, लेकिन मेरा बोलना है कि ये दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। इससे और ज़्यादा प्लांटेशन हमारा ख्याल से होना चाहिए हमारे देश में टू इम्प्रूव ग्लोबल एनवायरनमेंट। थैंक्स। माई सेल्फ जितेंद्र शर्मा, मैं इन्वायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी देखता हूँ। आज हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के उपलक्ष्य में यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आज हम लोग प्लांटेशन कर रहे हैं। इस बार का जो थीम है 2021 का थीम है इकोसिस्टम, रिस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम। इट मीन्स
जो हम लोग का इकोसिस्टम है उसको रीस्टोर करना है, रीस्टोर के बाद रीयूज करना है, रीयूज के बाद उसको रिसाइकिल करना है, ताकि हमारा जो और दूसरा इकोसिस्टम है उसको वो डैमेज होने से बचे और उसको किसी तरह का डैमेज ना हो पाए और उस तरह को उसको हम संरक्षण प्राप्त करें, संरक्षण करें, यही हमारा थीम होना चाहिए। थैंक यू। मैं चंदन सरकार हूँ, यहाँ बंगाल एनर्जी में हमारा जो पावर प्लांट है उसका O&M का इंचार्ज हूँ। एक्चुअली क्या है, हमारा थर्मैक्स में तो बहुत पहले से ही कार्बन फुटप्रिंट के ऊपर काम चल रहा है। हर एक साइट पे ही हम लोगों का इसका पूरा डाटा लिया जाता है, साल भर में क्या हम लोग कितना कार्बन रिलीज़ करते हैं, कितना क्रेडिट मिलता है हम लोग, वो कार्बन का ये रहता ही है। और ये बंगाल एनर्जी में बहुत अच्छा है। बहुत हम लोग पिछले साल भी हम लोग किए थे पेड़, मतलब 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ इधर। जो लास्ट ईयर हम लोग जो इधर किए थे, हमारा एडमिन बिल्डिंग के सामने उधर किए थे हम लोग, आज इस बार इधर कर रहे हैं हम लोग। ये बहुत अच्छा प्रयास है और ये हमारा सब कुछ लोगों के लिए नहीं, सबको एक एक पेड़ पौधे को अपनाना चाहिए। ये हमारे लिए, हमारा फ्यूचर जनरेशन के लिए एक बड़ा ये रहेगा, हमारे लिए एक स्टेप रहेगा, क्योंकि इतना आजकल जो इतना कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, उसके चलते पूरा एनवायरनमेंट के ऊपर इफेक्ट आ रहा है एंड एनवायरनमेंट चेंज हो जा रहा है। जो चेंज जो है वो नेगेटिव की तरफ है, पॉजिटिव की तरफ नहीं है। उसके चलते हमारा नेक्स्ट जनरेशन खतरे में आ सकता है। तो उसको बचाने के लिए व उसको स्लो करने के लिए हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना है एंड वो पेड़ को मतलब सिर्फ लगा के छोड़ देना नहीं है, उसको बड़ा भी करना है, क्योंकि पेड़ ही एकमात्र जो है जो हमको ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन फिक्सेशन काम में हमारा आता है। ओके, थैंक यू। আজকে আমরা সবাই জেনে না জেনে অনেকভাবেই আমরা গাছের প্রতি ক্ষতি করে ফেলি, কিন্তু কোনোদিনই আমরা অজান্তে আমরা গাছ বৃক্ষরোপণ করতে পারি না। শুধু আজকের দিনটা নয়, আমাদের মনে হয় প্রত্যেকটা দিনই এর জন্য কোনো টাইম স্পেসিফিক না গিয়ে সময় সুযোগ বুঝে আমাদের বৃক্ষরোপণ করা উচিত। তার জন্য আমাদের যদি একটু সময় আমরা দিই, তাহলে আমাদের সুন্দর পৃথিবীকে আমরা আরও অনেক কিছু আশা করার মতো জায়গায় নিয়ে যেতে পারবো পরের প্রজন্মের জন্য। এর জন্য আমরা চাইবো যে আমরা সবাই মিলে একসাথে একটা সময় করে আমাদের এই সুন্দর পৃথিবীকে বাঁচানোর একটা দায়িত্ব আমরা নিই। তার জন্য আমরা পরের প্রজন্মকে এমন একটা ভালো দিন দেওয়ার চেষ্টা করব, যাতে আজকে যে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি সেই পরিস্থিতি যেন আমাদের আর জীবনে কখনো ফিরে না আসে। सबको पेड़ पौधा लगाना चाहिए, अच्छा से रखना चाहिए, पेड़ पौधा को ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, ग्रीनरी मेंटेन करना चाहिए अपने जगह पर सबको। अच्छा, बस हैप्पी एनवायरनमेंट। আমার নাম নয়ন কুমার রায়, হর্টিকালচার ডিপার্টমেন্ট। আমার নাম সমর মুখার্জি, প্রদ্যুৎ পণ্ডিত। বিশ্ব পরিবেশ দূষণের যে গাছ লাগানোর জন্য যাতে মানুষ সুষ্ঠুভাবে অক্সিজেন গ্রহণ করতে পারে, কেন গাছ এমন প্রচুর পরিমাণে এখন কাটা হচ্ছে, সেই কারণে আমরা গাছ লাগিয়ে যতটা সম্ভব পারি যে অক্সিজেন দেওয়ার চেষ্টা করছি, মানুষ যাতে জীবজগৎ যাতে সুষ্ঠুভাবে বাঁচতে পারে। মানে এই যে গাছটা লোকে কেটে নিচ্ছে, তার ব্যাপারে আপনার কী বলা হচ্ছে? গাছটা কাটা উচিত? গাছ একটি প্রাণ, গাছ লাগাও, গাছ বাঁচাও। গাছ একটি প্রাণ, আমাদের গাছ লাগাও, গাছ প্রাণ বাঁচাও। The Green Pledge Tree is a pledge taken by the employees of Bengal Energy Limited that they will contribute their best in creating a greener and better world for present and future generations, restoring our ecosystem by including green technologies, making sustainable consumption choices, incorporating conservation efforts, and developing environmental awareness.
मैं आशुतोष कुमार सिंह बंगाल एनर्जी हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और पर्यावरण दिवस में सभी लोग आए बुलाने पे, इसके लिए सबका धन्यवाद, स्पेशली सीनियर्स, जूनियर्स एंड कलीग। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि पेड़ लगाइए और लगाने से ज़रूरी है उसको बचाइए, जहां तक हो जहां देखें पेड़ उसको बचाइए। थैंक यू सर। ये आज इन्वायरमेंटल डे है। हर साल की तरह आशुतोष जो इनिशिएटिव लेता है हर साल, इस साल भी लिया है और उसका ये इनिशिएटिव अच्छा लगता है कि आज का डेट नहीं, वो ये जो आज प्लांटेशन हुआ हम लोग जो किया, तो हम लोग इतना टाइम नहीं मिलता कि हम लोग को याद नहीं रहता, हम लोग को ये इतना केयर नहीं लेते, लेकिन हम लोग की तरफ से, पूरा कंपनी की तरफ से सब प्लांट का केयर यही लेते हैं। हम लोगों का जो जितना भी ग्रीनरी है बेंगलोर एनर्जी में, जो कोई भी विजिटर आते हैं तो उसका एक अप्रिशिएट करते हैं, तो ये सब आशुतोष का देन है। थैंक यू सर। थैंक यू आशुतोष। मैं अमित चौधरी बंगाल एनर्जी लिमिटेड में आज पर्यावरण दिवस का एक हिस्सा बन पाया, इसके लिए आशुतोष जी और बंगाल एनर्जी को धन्यवाद देता हूं। हम लोग सब घर, गाड़ी, बंगला ये सब को अपना एसेट समझते हैं, लेकिन पूरा समाज के लिए और पूरा संसार के लिए पेड़ कितना बड़ा एसेट है, ये सबको हम लोगों को समझना चाहिए और लगाना चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम पंकज गनेरीवाल, मैं रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स डिपार्टमेंट से हूँ। और पेड़ हमारी प्रकृति का सबसे महत्वपूर्ण एसेट है। हमारे जीवन में हमको जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। पेड़ जो है ऑक्सीजन प्रदान करती है, फल प्रदान करती है, छाया प्रदान करती है और हवा पानी का भी संतुलन जो है पेड़ बनाए रखती है। इसलिए पेड़ की जो महत्व है हमें मानना चाहिए और पेड़ लगाना चाहिए। धन्यवाद सर। मैं गदाधर माइती, HR एंड एडमिन डिपार्टमेंट बंगाल एनर्जी। एक्चुअली आज का डेट में जो पेड़ लगाया जा रहा है, सारा साल में ऐसा ही करके एक तो प्रोग्राम करना चाहिए। स्पेशल डे है, अलग है, लेकिन जिस तरीके से इंडिया सारा विश्व में जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसका हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होते ही जा रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेवल में लाने के लिए पेड़ ही एक ही मात्र उपाय है जो ऑक्सीजन प्रदान करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो इसीलिए हर एक दिन पेड़ बचाओ, मतलब पेड़ को बचाना है और रक्षा भी करना है। Life is built in the crucible of nature. To build a safer, resilient, and sustainable world, we must restore ecosystems. Healthy ecosystem mean a healthy planet and healthy people. Ecosystem restoration means assisting in the recovery of ecosystems that have been degraded or destroyed, or conserving the ecosystems that are still intact. Healthy ecosystems can strengthen people's livelihoods, curb climate change, and stop the collapse of biodiversity.